Hello students, am I audible? गाइस एक बार लेट मी नो कि मैम ऑडिबल है या नहीं है। Am I audible? मैम प्लीज एक बार आप अनम्यूट कर दीजिए। Students, am I audible? Yes ma'am, I audible. think I am not audible. Yes ma'am, audible. I think everything is fine now. Okay. Okay. So sorry for Okay, inconvenience guys. it was a technical error. Sorry for interruption. So I start my journey from starting. जी मैम। मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक की पूरी स्टडीज कुचामन सिटी से किया है, दैट इज अ टाउन इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। और मैंने आई सिक्योर्ड 8th पोजीशन इन राजस्थान बोर्ड मेरिट लिस्ट at graduation level. Also I am gold medalist, and thereafter I took admission in Triple IM College Jaipur. It is one of the best college in Rajasthan. सो एक स्मॉल टाउन से हिंदी मीडियम में ग्रेजुएशन करने के बाद में इट वाज इनिशियली चैलेंजिंग फॉर मी टू टुक एडमिशन इन कैपिटल सिटी, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन. On the one side, my batchmates were from quite a good background, and staying away from the family was another challenge. But I did not give up. I believed in myself, and I proved myself in results. I secured 14th position in university merit list. Then I came back to Kuchaman. I joined a private college, and simultaneously I cracked NET GRF in management. Then I got myself enrolled in MCOM EBSC, and फिर मैंने कॉमर्स में 2 बार नेट क्वालिफाई किया. And being an academician, I kept on enriching my knowledge. After completion of MCOM in ABSC, I completed my MCOM in EFM as well. That time I was university topper. I was awarded gold medal. एंड फिर मैंने एक बार और कॉमर्स में नेट क्वालिफाई किया. ये मेरे लिए इंटरव्यू के टाइम पे भी एक थोड़ा सा इसका एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी है. शिव, आप मुझे रिमाइंड कराना. आई शेयर विद स्टूडेंट्स. एंड so in this journey I served in private sector for 9 years, and at present I am working in a government college of Rajasthan as an assistant professor. सो ग्रेट मैम, आप तो मतलब हमारे स्टूडेंट को काफी आज फायदा होने वाला है क्योंकि एक ग्रेट रिसोर्स पर्सन आज हमारे साथ में है गाइस. तो हम जो मैम जो हमारा जो सेशन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो हम बात करेंगे कि कैसे बने असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड दूसरा मैम जैसा कि आप सभी को पता है कि गाइस एग्जाम इज नोकिंग आवर डोर, तो डोर स्टेप पे आ चुका है, एंड मैम विल टेल यू कि हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें हम. ठीक है, ये जो आपका 25 डेज का जो पीरियड है इसको आपको कैसे डील करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो पाए. सो मैम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजस्थान. सो मैम हाउ इट फील्स कि एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर लाइफ कैसी होती है? Look, first of all, I want to say that I did not come in this profession by choice. I came in this profession by the chance. Means when I completed my MBA, I got some health issues. So my father asked me to come back to home until I recover my health. And in my hometown, Kuchama city, there are less career opportunities in corporate sector. And I did not want to sit idle. So I joined a private institution, private college, with a temporary mindset. But once I entered in teaching profession, I found myself highly associated with this profession. Means I started feeling a belongingness with my students. Means being with students used to make me relive my college days. And now is the situation when my parents ask me, like, are they your students or you have finally adopted them? So now being an assistant professor, I feel like I can justify with this profession because being a teacher, we are teachers are the leaders of the society. We are the drivers of change. So we can make a good direction. We can give a good direction to many of the youth. So I love this profession. मैम टेल मी समथिंग अबाउट, हमारे जो लर्नर्स है काफी जानना चाहते हैं कि व्हाट इज असिस्टेंट प्रोफेसर होते क्या हैं? क्या ये सिर्फ रिसर्च करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं या समथिंग एल्स?
Look, teaching the books, reading the books, research, that is undoubtedly a primary task of a professor. We cannot keep it aside. हम इसको avoid नहीं कर सकते हैं. And that technical knowledge helps the students in their career, their jobs, their business. But for me, uh, teaching is far above than all these tasks. Means we teachers should give life skills to our students. Means we are the excuse me. Here I want to say that we can inculcate values in our students. We can give morals. We can develop a disciplinary attitude in our students. We can make a true SWOT analysis of our students. Means उनकी strengths क्या है, उनकी weaknesses क्या है, in which areas they are lacking, वो कहाँ अच्छा कर सकते हैं, उनके सामने क्या क्या threats आने वाली है. So in this way, मतलब only एक टीचर बहुत अच्छे से समझ सकता है कि उसका स्टूडेंट एक्चुअली क्या है और क्या कर सकता है. So here I want to convey a message to all the teachers that being the drivers of change, we should find out future leaders from the present youth generation. Okay, great, ma'am. So, ma'am, how you, being a teacher, how you feel to be justified with your profession, ma'am? दैट्स जो हमने अभी शिव पहले भी अभी हमने डिस्कस किया कि मतलब मेरे लिए टीचिंग इज नॉट कन्फाइंड टू टीचिंग बुक्स और रिसर्च. आई सेट अ बिलोंगिंगनेस विद माय स्टूडेंट्स. मींस आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्वेरीज ऑफ स्टूडेंट्स. उनको कभी भी किसी भी तरह से मेरी जरूरत हो, एज आई हैव इट हैज बीन 10 years व्हेन आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन. तो स्टूडेंट्स मुझे कभी भी किसी भी तरह की हेल्प के लिए दे कैन सीक फॉर मी. वो मुझे अप्रोच कर सकते हैं. एंड आई ट्रूली हेल्प देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. आई हेल्प देम. मीन्स आई ट्राई टू टीच देम what life is all about, what career is all about, like how you can find out your strengths, your weaknesses. So I think I justify with this profession. Okay, thank you so much, ma'am. मैम एक हमारे व्यूवर्स की एक रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम प्लीज हिंदी में थोड़ा सा बताएंगे तो उनको ज्यादा एक मतलब इंटरेस्टिंग हो पाएगी. ओके, आई विल ट्राई. तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैम जो हिंदी बेल्ट से हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं. श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल. सो गाइस, एक बार फटाफट से यार शेयर कर दो वीडियो को. एवरीवन प्लीज, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहां पे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए. एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है. बहुत एक रेनोन पर्सनालिटी हमारे साथ में है गाइस. एक बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षाविद आपके सामने है गाइस, जिनके एक्सपीरियंस है. बहुत सारे स्टूडेंट ने मैम के गाइडेंस में नेट जेआरएफ क्लियर किया है. और मैम आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है इस बार का सितंबर वाला नेट जेआरएफ क्लियर. सो एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर करें. सो मैम हमारा चलते हैं आगे. जैसा कि मैम आपको भी पता है कि डेट अनाउंस 16 सितंबर से 20 सितंबर तक हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं बच्चों के नेट जेआरएफ के. सो मैम वो अपना स्टडी प्लान कैसे बनाए? इन 25 डेज में पढ़ना बहुत है, ठीक है, सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उसको कैसे अपने एक्सरसाइज करें? देखो शिव, यहाँ पे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने नेट जेआरएफ कैसे क्लियर किया. सो हियर I honestly tell you, I did not formulated any like structured plan for this. I don't even remember, मुझे याद नहीं है कि मैंने इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक बाय भी किया था क्या. मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा हेल्प किया वो था मेरा टीचिंग में कंसिस्टेंट एफर्ट्स. मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत रिपीटेडली, बहुत रेगुलर बेसिस पे सेमिनार, पेपर प्रेजेंटेशन, डिबेट कंपटीशन, ग्रुप डिस्कशंस, ये सब कंडक्ट करती रहती हूँ, जिससे स्टूडेंट्स का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, उनको प्लेटफॉर्म मिल सके. लेकिन इन सारी चीजों ने मुझे इनडायरेक्टली हेल्प किया कि मैं टॉपिक से, मैं करंट इश्यूज से अपडेटेड रह सकूं. तो मैं बाकी लोगों से भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को एज ए टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डोंट वेट फॉर दैट टू हैपन. मतलब आपको गवर्नमेंट में आप सेलेक्ट होंगे तभी आप मतलब टीचिंग में आएंगे, ऐसा नहीं करिए. अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग में जाना चाहते हैं देन डू जॉइन ए प्राइवेट कॉलेज, बिकॉज जितना आप पढ़ाएंगे उतना आप ज्यादा पढ़ेंगे. यू टीच मोर, यू रीड मोर. सो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी. बट एज अभी स्टूडेंट्स के पास में देयर आर 20 to 25 डेज आई गेस, सो बहुत कम टाइम है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक थोड़ा सा पॉलिसी बनाकर तो चलना ही पड़ेगा. तो सबसे पहला चीज जो मैं फोकस करती हूँ, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, डोंट गो इन आइसोलेशन.
stay with your family, means that revives your energy. means generally students अलग हो जाते हैं family से, don't do this, but simultaneously be disciplined for your studies. आप अपने स्टडी आवर्स को मेंटेन करके रखें, खुद डिसिप्लिन रहें, लेकिन आइसोलेशन में ना जाएं. And second important thing is stay in positive environment. Means stay around the people who motivates you, who boost up your confidence. आप उन लोगों के साथ रहें. Believe in yourself. दूसरों को आपको डिस्करेज करने का मौका नहीं दे. Don't let others to discourage you. Means सबकी अपनी कैपेबिलिटीज होती है. Everyone have their own unique capability. सबका पढ़ने का अपना तरीका होता है. तो किसी से डिस्करेज नहीं हुए. आपको बहुत तरह के स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे कि नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप नेट क्वालिफाई कर लें, या फिर ये पॉसिबल नहीं है कि 20 दिन में आप नेट क्वालिफाई कर लें. ऐसा नहीं होता है. सो लेट योर रिजल्ट स्पीक. आपका रिजल्ट खुद बताएगा सबको. उसके बाद में जो जरूरी है वो है enjoy your sleep. लुक, मैं फोकस कर रही हूँ, मैं ये नहीं कर रही हूँ. टेक अ एडिक्वेट स्लीप. सबको पता है 7-8 घंटे सोना बहुत जरूरी है. यहाँ पे मैं जो फोकस कर रही हूँ दैट इज एंजॉय योर स्लीप. मीन्स आपको जितने बजे सोना है उसके 10 मिनट पहले बुक्स बंद कर दें, बुक्स को साइड में रख दें. बिल्कुल बुक से घिर कर ना सोएं. आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आपको फैमिली के साथ में 10 मिनट क्वालिटी टॉक करना है, तो वो करें. मतलब बहुत रिलैक्स मूड में जाएं और उसके बाद में सोएं, ताकि आप जब सुबह उठे तो मतलब आप वापस उस सिलेबस के ओवर बर्डन के साथ ना उठें. मीन्स यू शुड enjoy your sleep. Simultaneous you are taking an adequate sleep. उसके बाद में what is important is know your syllabus. Honestly मैं बता रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि एग्जैक्ट सिलेबस क्या है. सो आप आधा घंटा 1 घंटा अभी दीजिए एंड नो योर सिलेबस कि सिलेबस में क्या है, फर्स्ट पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में क्या है, किसका कितना वेटेज है. उसका एबीसी एनालिसिस कर लीजिए. लाइक आप कौन से पॉइंट्स में वीक है, कौन से पॉइंट्स में आप एवरेज है, और कौन से टॉपिक्स में आप स्ट्रांग है. सो जिनमें आप वीक हैं या फिर जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इतना कम टाइम में आप उनको बहुत स्ट्रांग नहीं कर सकते हैं, तो एक बार उनको साइड में रख दीजिए. एंड जो आपके एवरेज एरियाज हैं उनको स्ट्रांग बनाइए, और जो स्ट्रांग है उनको रिवाइज कर लीजिए. सो दैट स्ट्रेटेजी आप कम टाइम है इसलिए आप फॉलो कर सकते हैं. डे वाइज टाइम टेबल जरूर बनाइए. मीन्स आपको किस दिन क्या पढ़ना है ये आपका डे वाइज आप फिक्स होना ही होना चाहिए. एंड डू फॉलो द टाइम टेबल. ऐसा नहीं टाइम टेबल बना तो लिया है बट यू आर नॉट फॉलोइंग. चलो ठीक है, आज बच गया, अब ये मैं कल कवर कर दूंगा, फिर वो कल वाला परसों पे चला जाएगा. सो डोंट डू दिस. लाइक फॉलो योर टाइम टेबल. डे वाइज टाइम टेबल आपका होना ही होना चाहिए. एंड एक और चीज जो रिविजन में इम्पोर्टेंट होती है वो ये है कि एक बार में एक टॉपिक को लेकर ना बैठे. मतलब आप अगर किसी टॉपिक को 2 आवर्स में रिवाइज कर रहे हैं तो उसको आप 1.5 आवर में रिवाइज कर लीजिए, बट उसको एक बार नेक्स्ट डे फिर रिवाइज कीजिए. उसके नेक्स्ट डे आप उसको वेदर 5 ही मिनट दी, लेकिन उसको फिर से रिवाइज कीजिए. रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा जो मेमोरी है एक बार में ज्यादा नहीं ग्रैस्प कर सकता है, उसको रिपीटेशन चाहिए होता है चीजों का. तो रिविजन में रिपीटेशन का पैटर्न फॉलो कीजिए, एक बार में ज्यादा टाइम देने की बजाय. एंड rest or your results will speak. So great मैम, काफी हेल्प मिलेगी बच्चों को, क्योंकि मैम हमारे पास लगातार जब से डेट रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो बच्चे लगातार मैसेज करें कि सर बहुत टेंशन में है, इतना पढ़ना है, कैसे रिवीजन करें, उसको कैसे कंसोलिडेट करें. तो काफी हेल्प मिलेगी हमारे लर्नर्स को. मैम एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि काफी बच्चों का ये हुआ है, हमने भी एग्जाम दिया है, सबको होती है वो टेंशन कि एग्जाम से 2 दिन पहले हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं. मतलब एकदम ये लगता है कि इस बार का एग्जाम स्किप कर देते. इवन कि मैम अभी भी काफी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सर नेक्स्ट बार दे देते हैं, इस बार टाइम कम है तो नेक्स्ट बार दे देते हैं. तो उस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए? लोक शिव, ये बहुत नेचुरल चीज है. इसमें कोई इट इज नॉट लाइक कि बहुत आउटस्टैंडिंग चीज किसी के साथ हो रही है. ऐसा होता है, लेकिन ऐसा जब भी आपके माइंड में आए कि बहुत स्ट्रेस हो रहा है, देन अपने दिमाग में सोचे कि इट इज जस्ट एन एग्जाम. दो ये आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम हो सकता है, बट स्टिल स्टूडेंट्स ये सिर्फ एक एग्जाम है, इसको जीवन मरण की लड़ाई ना बनाए. मतलब स्टार्ट योर डे नॉर्मली, एंड योर डे नॉर्मली. वो सारी एक्टिविटीज जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या प्रेयर करते हैं, तो कीप कंटिन्यूइंग डूइंग ऑल दीज थिंग्स टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम.
आप अपनी सारी रूटीन वर्क्स को फॉलो करिए, मीन्स डोंट वेस्ट योर टाइम, बट जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी वाले एलिमेंट्स हैं उनको स्किप मत करिए। नॉर्मल चलिए, नॉर्मल उठिए, नॉर्मल सोइए, बिल्कुल स्टार्ट योर डे नॉर्मली, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि आई एम फॉलोअर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, तो वहां पे एक श्लोक है, लाइक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोऽस्त्व कर्मणि। मींस बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, जो वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में है, एक स्टडी करना, टाइम मैनेजमेंट करना, डिसिप्लिन में रहना, ये हमारे कंट्रोल में है। प्रिपरेशन, इन सब पे हम फोकस करें, लेकिन रिजल्ट्स आर इन हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी, सो लेट हिम डू हिज वर्क एंड वी आर सपोज्ड टू डू आवर वर्क। परेशान न होइए, स्टे काम। ओके, सो दैट आई वांट टू सजेस्ट। बिल्कुल मैम, यही होता है कि अभी अपन टेंशन करेंगे तो अपनी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी मैम। और मैम डेफिनेटली, इवन आई वांट टू से सॉरी, जी मैम, मतलब दो चीज होती हैं, वन इज थिंकिंग एंड वन इज टेंशन। दिस चिंता एंड चिंतन, दीज आर टू वर्ड्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज। सो आपको चिंतन करना है, कीप ऑन थिंकिंग, आपको कैसे प्लान करना है, कैसे करना है, कैसे आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे, कीप ऑन थिंकिंग, दैट इज मैनेजमेंट। बट मेक श्योर कि आपका जो चिंतन है वो चिंता में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। हमें चिंता नहीं करना है, सिर्फ एग्जाम है, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच मैम। मैम एक चीज होती है एग्जाम में कि बहुत लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उनको बहुत डर रहता है, तो विल पावर का पैडल क्या हो जाता है मैम? बहुत ज्यादा पढ़ सॉरी? लेते हैं वो। एक्चुअली मैम क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हाँ उनको मन हाँ में एक डर रहता है कि कहीं क्या पता होगा या नहीं होगा, एक शंका सी होती है, एक डाउट होता है, सेल्फ डाउट होने लग जाता है। हाँ हाँ तो हाँ मैम हाँ। विल पावर का कितना रोल रहता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में? Willpower, well, it is very important to live your life, to qualify any exam. हर जगह willpower is very important. इवन यहाँ पे मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूंगी। आई एम ए पीएच कैंडिडेट, आई हैव इनबॉर्न न्यूरोलॉजिकल डिजीज। मैं बहुत लॉन्ग आवर्स तक बैठ नहीं सकती हूँ, बहुत लॉन्ग टाइम तक एक किसी टॉपिक पे कंसंट्रेट नहीं कर सकती हूँ, सो आई हैव गॉट सर्टेन लिमिटेशंस। बट उसके बाद भी आई नेवर गिव अप, मैंने हमेशा पढ़ना जारी रखा, हमेशा, मतलब मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा कि ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं पीएच कैंडिडेट हूँ। इवन मैं जब गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्ट हुई तब भी मैंने अपनी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं लिया, आई एम सिलेक्टेड इन अ जनरल कैटेगरी। सो विल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज जो मैं यहाँ पे, मतलब एक एग्जांपल में यहाँ पे जो देना चाहती हूँ कि सपोज आप किसी रास्ते पे चल रहे हैं, बहुत कंकरीला पथरीला आपका रास्ता है, लेकिन आपके शूज बहुत स्ट्रांग है, तो आप उस रास्ते को पार कर सकते हैं। बट अगर उनमें से कोई कंकर आपके शूज में आ जाए तो फिर आपके लिए रास्ता पार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे रास्ता कितना भी अच्छा बना हुआ नहीं हो। सो यहाँ पे है कि जो एक्सटर्नल चैलेंजेस है वो आपको नहीं हरा सकते हैं, बाहरी चुनौतियों का आप आसानी से सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से कमजोर हो गए तो आप फिर नहीं जीत सकते हैं। सो विल पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ग्रेट स्टोरी मैम। मतलब काफी स्टूडेंट को इससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सो मैम एक कॉमन क्वेश्चन अभी बच्चों का आ रहा है कि मैम एग्जाम हॉल में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, एग्जाम हॉल में जब हम पेपर दे रहे होते हैं तब बच्चे मतलब आते क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं, तो वहां पे अपने आप को कैसे मैनेज करें, कैसे अपने आप को बैलेंस रखें ड्यूरिंग द एग्जाम? देखिए, इसके लिए सबसे बेटर तरीका ये होता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टाइम लिमिट के साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। मीन्स एग्जामिनेशन हॉल में आप जिस स्ट्रेस से होकर गुजरते हो यही होता है कि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आपके सामने और टाइम कम है, तो आप इस टाइम लिमिट के साथ, टाइम मीन्स आप एक स्टॉप वॉच रख लीजिए, टाइमर ऑन कर लीजिए, और उसके साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, बहुत सारे मॉडल पेपर्स वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इवन द टीम ऑफ अनअकैडमी इज डूइंग वेरी गुड फॉर देयर स्टूडेंट्स। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन टाइम पे अनअकैडमी के बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छा स्टफ दे देते हैं, तो आप उनको फॉलो करिए। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर लीजिए, उसको बिल्कुल वही आपका जो टाइम बाउंडेशन है, एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसमें आप उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करिए, तो आप उस स्ट्रेस से पहले होकर निकल चुके होंगे। आपको पता रहेगा कि आपने क्या गलती की है,
मतलब एग्जाम को हम एक्सपेरिमेंट ना बनाएं, वो एक्सपेरिमेंट हम पहले कर चुके होंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे या मॉडल टेस्ट पेपर्स पे, तो एग्जाम को डील करना हमारे लिए इजी होगा। वहां पे काम रहे, अपने दिमाग में ये सोचे कि अगर मैं हड़बड़ा जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं नर्वस हो गया तो खेल यही खत्म हो जाना है। सो आई नीड टू स्टे काम। अपना पानी का बॉटल साथ में कैरी करें, बिल्कुल आराम से पेशेंस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करें। सो थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि मैम ये सबसे बड़ी लड़ाई वही होती है, पढ़ते सब है मैम, लेकिन डी डे के अंदर सब फेल कर जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनका नहीं हो पाता। मैम एक जनरल क्वेरी होती है काफी स्टूडेंट की कि 3-4 बार से नेट दे रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे मैम, तो बहुत निराशा सी उनके मन में है, तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? शिव, देखिए, फेलियर एंड निराशा ये बहुत नेचुरल है, ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर किसी चीज के लिए एफर्ट लगा रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होना बहुत जेन्युइन है। हमको इससे बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे निराश नहीं होना है। ये अगर मैं कहूंगी तो बहुत आइडियोलॉजिकल हो जाएगा, लेकिन ऐसा है। हाँ, समटाइम्स यू ऑल्सो मे बी फीलिंग लाइक क्राइंग, अगर आपको रोना आ रहा है रो लीजिए, बट आपको दूसरों को ये क्लैरिफिकेशन देने का कहीं जरूरत नहीं है कि आप कहाँ आपकी मिस्टेक्स हुई। डोंट ट्राई टू जस्टिफाई योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। एक्सक्यूजेस मत दीजिए, अपनी फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मुझसे कहीं ना कहीं कमी रही होगी। अब आप बैठ कर, एक बार डिसअपॉइंटमेंट हुआ, रो भी लिए, सब हो गया, बट उससे फटाफट से ओवरकम कर जाइए। मतलब स्टूडेंट्स मेन जो गलती ये करते हैं कि डेट्स के रीओपन होने का वेट करते हैं कि फॉर्म्स तो आ गए लेकिन अभी डेट्स आना पेंडिंग है। तो डोंट वेट फॉर डेट्स टू रीओपन, वापस से आप तैयारी में लग जाइए। अब एनालिसिस कीजिए। देखिए, मैनेजमेंट का एक टर्म है यहाँ पे कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे एनालाइज कीजिए कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या थे, क्वेश्चन पेपर में क्या पैटर्न था, आपके पढ़ने में क्या मिस्टेक हुई, क्या आपके कहाँ गैप रहा, आपने कौन सी टॉपिक्स को कवर नहीं किया, आप किधर वीक हो। तो आप जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, आप देखिए कि आपको अब कैसे नए सिरे से प्रिपरेशन करना है। मतलब फेलियर को अपने दिमाग पे हावी करने की बजाय उसके सॉल्यूशंस आप ढूंढिए। आप मेंटोर से मिल सकते हैं, आपके जो अच्छे टीचर्स है, आपके गाइड है, या जहां से आप कोचिंग ले रहे हैं उनसे पर्सनली मिलिए, उनसे बात करिए। वो आपको बताएंगे कि आपने कहाँ गलती की, व्हाट वर योर मिस्टेक्स, आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग एक नया स्ट्रेटेजी बनाइए। पहले हम ब्लाइंड पढ़ाई करते हैं, फिर हम नहीं क्रैक कर पाते हैं, फिर हम डिसअपॉइंटेड होते हैं और अगेन हम वही मिस्टेक्स करते हैं। दैट इज रॉन्ग। सो ग्रेट मैम। मैम अभी काफी स्टूडेंट के डाउट हैं कि मैम हम एक एवरेज स्टूडेंट है, तो एवरेज स्टूडेंट के लिए इस टाइम पे प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इन लास्ट 25 डेज एक एवरेज स्टूडेंट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? क्या वो पूरा सिलेबस पढ़े, या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए शिव, ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम, जैसे आप एवरेज स्टूडेंट है या आप बहुत इंटेलिजेंट है, 100% सिलेबस पे कमांड किसी का नहीं होता है। सबका प्रिपरेशन करने का एक अलग तरीका होता है और सबके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होते हैं। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो 100% सिलेबस को कवर करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं एक बार आप उनको छोड़ दीजिए, अपने स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाइए, अपने एवरेज को स्ट्रॉन्ग बनाइए और उन्हीं को कीप ऑन रिवाइजिंग। अगर आपके वीक पॉइंट्स में से ऐसा कोई टॉपिक है जिनका सिलेबस में बहुत ज्यादा वेटेज है, तो अलग से किसी टीचर से, किसी गाइड से उसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और उस पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक हमने सारे, अभी एक किसी का है मैम, डाउट आया है पूजा अग्रवाल का कि प्लीज मैम शेयर योर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, सो कैन यू शेयर सम? माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ये थोड़ा सा मैंने आपसे कहा भी था कि आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। असल में जो यूजीसी नेट का स्ट्रेटेजी है उसमें कॉमर्स को लेकर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। जैसे अगर आप आर्ट्स में एमए कर रहे हैं हिस्ट्री से, तो आपको नेट में भी स्पेशलाइजेशन मिलेगा कि आप हिस्ट्री से नेट कर रहे हैं। बट कॉमर्स में ऐसा है कि एमकॉम में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, लेकिन आपको नेट में सिर्फ कॉमन नेट मिलेगा, दैट इन कॉमर्स। तो मेरे साथ ऐसे और भी कैंडिडेट्स थे जिनको ये लगा कि अगर आपने एक बार एमकॉम कर लिया सपोज एबीएससी में, फिर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया कॉमर्स में, उसके बाद में अगर आपने एमकॉम ईएफएम से किया है तो सेम नेट जो आपने पहले किया था वो उसके लिए भी आपको उसके लिए वो क्वालिफाई माना जाएगा।
तो व्हेन ऑन द डे ऑफ माय इंटरव्यू मैंने मेरा जो ईएफएम में एमकॉम है वो 2014 का है, और मेरा जो नेट फर्स्ट नेट था वो 2013 का था। सो मुझे लगा कि कॉमर्स नेट ऑल आर इक्वल, मैंने सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट लिया, एंड मैं एट द डे ऑफ इंटरव्यू माय फॉर्म वाज कैंसिल्ड एंड आई वाज डिक्लेयर्ड एज डिस्क्वालिफाइड। तो फिर बाद में लाइक लकीली माय फ्रेंड सपोर्टेड मी, उसने मेरे घर पे डॉक्यूमेंट सर्च किए, मुझे डॉक्यूमेंट मेल किया। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू से कि बिफोर गोइंग टू अपीयर इन एनी इंटरव्यू डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट, अपने एक एक डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करें। मीन्स हमको जनरली लगता है हाँ ठीक है हो गया है, शायद सब हो गया है, सब रखा था, ऐसा नहीं करें। एक बार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अपने सारे डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें, और उसके बाद में सेम जैसे हम एग्जाम हॉल में बात करते हैं कि स्ट्रेस नहीं लेना है, काम रहना है, उसको ऐसे मानना है, अपने दिमाग में ये रखना है कि मैक्सिमम लॉस क्या होगा, नहीं तो सिलेक्ट होगा, यही तो होने वाला है। मीन्स इसको बहुत ज्यादा अपने दिमाग में हावी मत करिए, अपनी जो प्रिपरेशन करी है उस पर बिलीव करिए, बिलीव इन योर सेल्फ, एंड बहुत अच्छे से पेशेंस वाइज आंसर करिए। आपको कुछ नहीं आ रहा है जस्ट से ऑनेस्टली कि सॉरी एक्सक्यूज मी मुझे नहीं आ रहा है। सो थैंक यू मैम। मैम आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। तो मैम कुछ लास्ट वर्ड्स, कुछ लास्ट मैसेज हमारे लर्नर्स के लिए जो आप देना चाहो खुदा उनके एग्जाम के लिए कि 25 डेज के लिए वो कैसे तैयार है, या मैम आपका कुछ अलग से कुछ हमारे लर्नर्स के लिए मैसेज है तो प्लीज कैन यू से। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आप लोग को यही कहना चाहती हूँ, देयर इज नो ऑल्टरनेट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत आप लोग को करना ही पड़ेगा। आप ये सोचिए कि ठीक है कुछ लोगों के पास गॉड गिफ्ट होता है, वो बहुत थोड़ी सी मेहनत से या बिना पढ़े भी निकल जाते हैं, बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है। सो बीइंग कॉमन मैन आप लोगों को मेहनत करना ही करना है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर दिस। और प्लान करके पढ़िए, ब्लाइंड मत पढ़िए, थोड़ा पढ़ लिया कल पढ़ लूंगा या फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं करिए। प्लान तरह से पढ़िए, प्रिपेयर करिए, टाइम टेबल बनाइए और फॉलो द टाइम टेबल एंड नेवर गो इन आइसोलेशन। फैमिली के साथ रहिए, दैट इज द ओनली प्लेस विच रिवाइव योर एनर्जी। एंड कुछ लोग आपको डिस्करेज करेंगे, आपको बार बार में पिंच करेंगे, तू नहीं कर सकता है, तुम कर ही नहीं सकते हो ये चीज। सो ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द ही ना आने दें, उनसे डोंट आर्ग्यू विद देम, उनसे आपको आर्ग्यू नहीं करना है, लेकिन आप उनसे दूर रहिए। And you will definitely crack your NET exams and whatever exam you are planning for. My best wishes are always with you. Thank you. थैंक यू सो मच मैम हमें टाइम देने के लिए। सो गाइज आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिलेगी मैम के एक्सपीरियंस से। सो एवरीवन प्लीज एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दें, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पे प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड गाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। एंड गाइज अभी हम 12 बजे एक मेगा टेस्ट करने वाले हैं अदिति मैम के साथ और मैं, हम दोनों मिलके आपके लिए एक टेस्ट लेके आ रहे हैं, तो प्लीज उसको ज्वाइन कीजिए आप सभी लोग एट 12 PM। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो इनिशिएटिव है हमारा सक्सेस स्टोरी वाला इनिशिएटिव काफी हेल्प कर रहा होगा। सो गाइज फाइनली टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ। Bye students, all the best.